from academia to understand, innovate, and finally provide state-of-the-art R&D solutions to the industry. Not taking too much time of yours, I will introduce our first speaker, Professor Raj Kumar. Uh, Professor Raj Kumar is distinguished academician, researcher, and educational administrator, and currently Vice Chancellor, Punjab University, Chandigarh. He completed his PhD from Banaras Hindu University and D.Litt from University of Lucknow. Professor Rajkumar has been actively engaged in teaching and research in the field of management for more than 3 decades. He has been Director, Dean and Head of Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, Varanasi. I invite Professor Rajkumar to deliver his welcome address. थैंक यू प्रज्ञा जी। परम आदरणीय आज के मंत्री जी माननीय नितिन गडकरी, जो कि भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, शिपिंग के साथ साथ एमएसएमई मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता श्री मुकुल कानितकर जी, जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भारतीय शिक्षण मंडल। आज के हमारे आदरणीय अतिथि राजेश बेनीवाल जी, जो कि डायरेक्टर जनरल आरएफ के हैं। साथ ही साथ इस वेबिनार में उपस्थित तमाम हमारे रिसर्चर, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, research scholars of the Punjab University, students, ladies and gentlemen. At the very outset, I greet and welcome Honorable Minister Sri Nitin Gadkari ji on my own behalf and on the behalf of the Punjab University. It is a matter of great pleasure and great fortune that today we have amongst us Sri Nitin Gadkari ji, who is the current Minister for Road Transport, Highways, Shipping, and the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises in the Government of India. Sri Nitin Gadkari ji, on my behalf of entire Punjab University fraternity, I welcome you in the event. I also welcome Sri Mukul Kanitkar ji, who is National Organizing Secretary of Bharatiya Shikshan Mandal, and Dr. Rajesh Biniwal ji, who is Director General of Research for Resurgence Foundation. I also welcome all the delegates from the MSMEs and of this region and all the academicians present in this event. I was told near about 180 MSMEs of our region have formally registered for today's event, and 200 academicians of our region have formally registered for today's event. In today's event, MSMEs are going to share with academia needs on which they want R&D to be done. I am very happy to inform you, Honorable Sir, the Punjab University is a premier institution, premier university. Now we are 139 years old. This is the only university in India which started from one country, I mean Lahore from Pakistan, and spread over entire India. Brihad Bharat, I can say, sir. This university is unique in the nature. It always ranked within 10. And when we'll talk about the international ranking, again, it has ranked in a very prestigious position. Sir, we are having presently 78 departments, and we are very strong in science, basic science and technology. We are having more than 60 prototypes that are being showcased in our nation, in our CIL, Central Instrumentation Lab. We have near about more than 60 international collaboration with the very reputed universities across the world. The university has have produced many leaders
academicians, Nobel laureate, Supreme Court judges, social reformers, and many more. Our university is great in the sports also. I am very happy to say over here, sir. In all university in sports and game, we are the first. Maka Trophy, that is the one and only one. We got it only after joining as vice chancellor in Punjab University. Hello India, the first award was instituted by the Ministry of Games and Sports. The Punjab University got the privilege to bag that also. So not only in the areas of the research, academics, and the innovation, sir, we are everywhere, every sphere. The Punjab University ranked within 10, as I stated earlier, sir. In this pandemic, I want to very humbly, sir, submit before you. In this pandemic, within 4 connected with the researchers, academicians across the world. Not only that, our scientists produced, our scientists submitted more than 30 projects, sir, especially based on this pandemic. 28 crore, and you shall be happy, sir. Yeah, out of that, we got near about 5 to 6 crore rupees. When there is the everywhere, there is the scarcity of the funds, sir. With this, sir, I will not take much time because we are here to listen Honorable Minister as well as Manini Mukul Kanitkar ji, sir. We are having the connectivity with the 200 colleges that we have, sir. At the same time, very good number of industries, not only means from 2 places, the entire belt of the Ludhiana, then Hoshiarpur, and connected with this region, particularly Punjab and this Haryana belt, sir. So with this, sir, once again, I welcome each one of you, and I am very obliged, sir. You have spared the time and given the opportunity, not only the scientist, but the student and the entrepreneurs, and they are expecting a lot from the Punjab University. Your address will be a very strong guidance, very strong means space for the basic researches in the areas of the SMEs. Thank you so much. Thank you very much, Professor Rajkumar. Now I will introduce our today's guest of honor, Shri Mukulji Kanetkar, who is our next speaker. Shri Mukulji Kanetkar is National Organizing Secretary of Bharatiya Shikshan Mandal. He was Secretary Vivekananda International Foundation, New Delhi during 2008-2011. He has delivered more than 7,500 lectures, published more than 8 books, and published more than 2,000 articles in Hindi, English, and Marathi. He has developed training workshop modules for stress management, life management, teachers orientation, etc. He is visiting faculty at various management departments of MS University Baroda, IIT Mumbai, IIT Roorkee. I invite Shri Mukulji Kanetkar to deliver his guest of honor address. Thank you. पवन जी, आदरणीय नितिन जी गडकरी, माननीय मंत्री, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार जी, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल आदरणीय राजेश बिनीवाले जी, यहाँ उपस्थित समस्त उद्योजक वृंद, प्राध्यापक वृंद, बहनों और भाइयों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और मुझे याद है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लुधियाना कैंपस में प्रोफेसर राजकुमार जी के साथ जब गया था, तब लुधियाना के क्लस्टर में अलग अलग प्रकार के जो MSMEs काम करते हैं, छोटे और मझोले उद्योग काम करते हैं, उन उद्योगपतियों के साथ में एक बैठक वहां पर की थी। उस बैठक के मध्य अनेक सकारात्मक बातें और उद्योजकों ने हमारे साथ शेयर की थी।
उस समय वहीं उस बैठक के मध्य से मैंने माननीय मंत्री जी को और एसएमएस किया था कि यहाँ एक बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है और किसी दिन इन सब लोगों के साथ आपकी भी चर्चा होनी चाहिए, और आपने उस एसएमएस को तुरंत उत्तर दिया था कि जरूर करेंगे, या तो उन लोगों को दिल्ली बुलाएंगे। लेकिन आज इस संकट के समय में माया जाल में, इस अंतर जाल में माननीय मंत्री जी के साथ, नितिन जी के साथ हम सब लोगों की भेंट हो रही है। भारतीय शिक्षण मंडल गत 51 वर्षों से शिक्षा को भारत केंद्रित और भारत हित की बनाने के लिए कार्य कर रहा है। 2016 में नागपुर में हमने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस इस नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की, जिसमें सारे विश्व भर से विद्वान आए थे और इस विषय पर विचार किया गया था कि विश्वविद्यालयों में होने वाला जो रिसर्च है, अनुसंधान है, और वो एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुसंधान विश्वविद्यालयों में होता है। आज भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हो गए हैं और प्रतिवर्ष 30,000 से अधिक लोग पीएचडी करते हैं, आचार्य की उपाधि पाते हैं। 30,000 से अधिक लोगों के more than 30,000 PhD theses are published and PhDs are awarded every year. इतने बड़ी संख्या में अनुसंधान होने के बाद में भी हम देखते हैं कि राष्ट्र की समस्याओं के लिए, समाज के मूलभूत समस्याओं के लिए कितना अनुसंधान विश्वविद्यालय कर पाते हैं। इस चिंता के साथ में इसका उपाय खोजने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल ने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना की। 2017 से यह फाउंडेशन नागपुर को केंद्र बना करके सारे भारत में कार्य कर रहा है। लगभग 75 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा अनुबंध है, एमओयू है, और उनके साथ मिलकर के हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को बदलना, रिसर्च के अनुसंधान के केंद्र को, फोकस को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। समाज के लिए उपयोगी व्यावहारिक रिसर्च कैसे हो, और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य हमने 2016 की उस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी से ही प्रारंभ किया था। वहां पर एक प्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको नाम दिया था उद्यम, और जिसमें फीकी और सीआईआई के साथ में मिलकर के हमने उद्योगों के और नेतृत्व को और विश्वविद्यालय के नेतृत्व के साथ में उनका संवाद करने का प्रयत्न किया था। और वहां जो समस्या सामने आई और जो बात वहां पर सामने आई, वही आज की इस संगोष्ठी का भी विषय है। इंडस्ट्री और एकेडमिया, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच में संवाद का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई और संकट हो, चुनौती हो, तो वो चुनौती है विश्वास की चुनौती। ट्रस्ट डेफिसिट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। हमारी इंडस्ट्री अभी भी हमारे विश्वविद्यालयों को, एंड दे आर नॉट रॉन्ग बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट इट, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में होने वाले रिसर्च की व्यावहारिकता को लेकर के प्रश्न चिन्ह सबके मन में, और एन इंडस्ट्री डज नॉट ट्रस्ट द यूनिवर्सिटीज फॉर देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज सारे विश्व में हम देखते हैं, जापान, कोरिया जैसे देश, यदि एशिया के हमारे करीब के देश, इसलिए मैं उनके उदाहरण दे रहा हूं, यूरोप, अमेरिका में भी यही होता है। इंडस्ट्री को विश्वविद्यालय इस बात के लिए सहयोग करते हैं कि उनकी प्रोसेसेस कैसे मोर इफिशिएंट हो, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उनका उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ में उनका व्यय कैसे कम हो, उनके प्रोसेसेस में लगने वाली ऊर्जा की खपत कैसे कम हो, उनके मनुष्य बल को कैसे ज्यादा स्किल किया जाए। इन सारी बातों के लिए इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री का विश्वविद्यालयों पर एक और विश्वास होता है और वो कार्य होता है, सारे विश्व में होता है। भारत में अभी हम वो विश्वास नहीं उत्पन्न कर पाए, इसलिए एकेडमिशियंस का, शिक्षा जगत का ये महत्वपूर्ण और कर्तव्य है, दायित्व है कि वो प्रारंभ से ही अनुसंधान में, हमारे सिलेबस मेकिंग में, हमारे कोर्स कंटेंट में प्रारंभ से ही उद्योग जगत का और सहभाग बढ़ाने का प्रयत्न करें। राजकुमार जी और पंजाब विश्वविद्यालय ने उस दिशा में कार्य किया, इसीलिए हम उनके साथ में काम करते हैं और इसीलिए उनके रैंकिंग 10 में से 1 रहते हैं, वो जो बता रहे विश्व देश में। उसका एक कारण यह भी है, जितना हम व्यावहारिक होंगे, जितना हम ज्यादा रियल जगत के साथ जुड़ेंगे, उतना हमारा शिक्षा जगत पुष्ट होगा। और साथ ही साथ यहाँ जुड़े हुए एमएसएमई के नेतृत्व से, उद्योग जगत के नेतृत्व से, और आप में से कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई, इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग कितने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ और
इस भारत सरकार के सभी और नए चरणों का भी स्वागत करते हैं, उसकी भी हमारी चर्चा हुई है और आपके इश्यूज की भी चर्चा हुई है। और माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी को हम सब लोग और खास करके हम तो नागपुर वाले लोग तो बहुत करीब से जानते हैं। वो मंत्री तो है ही, राजनेता तो है ही, लेकिन उससे बड़े वो उद्योजक है। शून्य से एक बहुत बड़ा उद्योग जगत निर्माण करने का काम उन्होंने किया और अनेक और कार्यकर्ताओं को उन्होंने उद्योजक बनाया। अभी कल परसों ही किसी बैठक में उन्होंने हमारे मित्र समय बंसोड़ का नाम लिया कि अब समय बंसोड़ तैयार हो गए हैं मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसे अनेक उद्योजकों को नितिन जी ने तैयार किया है और इसलिए वो व्यावहारिकता से इस विषय को समझते हैं, इसलिए आज हम उनको ज्यादा सुनना चाहेंगे। लेकिन एकेडमिशियंस के साथ साथ उद्योजकों से मेरा केवल इतना अनुरोध है कि आप शिक्षा जगत पर विश्वास बढ़ाइए, उसमें अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। शिक्षा जगत के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 29 जुलाई को आई है, उस शिक्षा नीति में अप्रेंटिसशिप को बहुत बड़ा महत्व दिया है। अप्रेंटिसशिप को शिक्षा का कार्य माना गया है, इसलिए आप हमारे शिक्षकों को भी जोड़िए, शिक्षकों को अवसर दीजिए कि वो व्यवहारिकता से अपने सिलेबस को समाज के सामने रख सके। जितना संवाद बढ़ेगा उद्योग और शिक्षा जगत के बीच में, जितना संवाद बढ़ेगा उतना हम काम कर सकेंगे। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि उद्योग और शिक्षा जगत को हम साथ में लाए, साथ में मिलकर के एक दूसरों की चुनौतियों का, चैलेंजेस का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करें। जो रिसर्च हो वो फंडामेंटल रिसर्च तो होना ही चाहिए, नए ज्ञान की खोज तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ व्यवहारिक रिसर्च होना चाहिए। जो पेटेंट हो सके, प्रोटोटाइप बन सके, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। जो कमर्शियलाइज हो सके, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। और मैं केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मानविकी के क्षेत्र में भी, हमारे सोशियोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में भी व्यावहारिक रिसर्च करने के लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। और इसलिए इंडस्ट्री को और शिक्षा जगत को करीब लाने के लिए यह संगोष्ठी है। एमएसएमई एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो एक सरकार आज आत्मनिर्भर भारत की योजना को लेकर के हमारे सामने आई है। भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को यदि आत्मनिर्भर बनना है, हमारे यदि देश को पूरी तरह से व्यापक सर्वसमावेशक समृद्धि की ओर जाना है, तो उसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, यह जो मझोले उद्योग है, यह जो छोटे उद्योग है, इन उद्योगों की सबसे बड़ी महती भूमिका है। इसलिए आप लोगों के साथ शिक्षा जगत की चुनौती, होशियारपुर के और लुधियाना के और चंडीगढ़ के और पंजाब, पूरे पंजाब के उद्योग जगत के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप अधिक विश्वास रखिए शिक्षा जगत पे। साथ में मिलकर के हम कुछ मिशन मोड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसको मिलकर के हम कुछ वास्तविकता में और देश की, समाज की चुनौतियों का समाधान दे सकेंगे। ऐसा फलित एक अच्छा संबंध, इंडस्ट्री और एकेडमिया का संबंध इस संगोष्ठी में से निकले, इस विश्वास और इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को संक्षेप में विराम देता हूं, ताकि हम माननीय मंत्री जी को विस्तार से सुन सके। आदरणीय नितिन जी का और एक बार मनपूर्वक व्यक्तिगत और रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन और भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। Next speaker, today's chief guest of this event, Honorable Minister Shri Nitinji Gadkari. Shri Nitinji Gadkari is Cabinet Minister and is currently Minister for Road Transport, Highway and Minister for Shipping and Minister of Micro, Small and Medium Enterprise in Government of India. Gadkari ji earlier served as President of the Bharatiya Janata Party from 2010 to 2013. He is well known for his work related to development of roads, highways and flyovers across India. He is also well known for his keen interest in environmental issues, particularly interested in projects related to waste to energy, agriculture and farmer related issues. His focus for the development of MSMEs is well known and well documented. As we all know, he himself is an entrepreneur and he created an industry from scratch. He led from the front and motivated so many new entrepreneurs, karyakartas, to start their own startups. He knows MSME inside out, agriculture and farmer today. He currently is focused on the development of MSME is well known and well documented. As we all know, he himself is a Gadkari to deliver his
आदरणीय मुकुल जी, आदरणीय राजकुमार जी और सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आपने सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को और फाउंडेशन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि हमारी आज की जो परिस्थिति है वो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक संकट के रूप में उभर कर आई है। ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, ये हमारे लिए बहुत ही एक गहन समस्या के रूप में, आह्वान के रूप में हमारे सामने खड़ी है। पर केवल ये हम ही इसका सामना कर रहे, ऐसा नहीं है। पूरा वर्ल्ड इसका सामना कर रहा है। इस समस्या के कारण लोगों के मन में निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, निराशा और भय, फियर बड़े प्रमाण पर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लोगों के मन में पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करना, ये यूनिवर्सिटी और आप जैसे जो एक कैपेबल स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। देखिए, ये संकट कोई पहले हमारे देश पर आया, ऐसा नहीं है। 47 के पहले और 47 के बाद में अनेक संकटों को हमने झेला है और हम यही कहते हुए आए हैं कि संकटों पर मात करके राष्ट्र विजयी वो हमारा, यही हमारा स्पिरिट रहा है। हमारी 3 बार पाकिस्तान से लड़ाई हुई, 1 बार चीन से हुई। नेचुरल कैलेमिटीज के बड़े बड़े संकट आए, बाढ़ आए, कहीं बादल फट गए, कभी बरसात के कारण समस्या आई। इतना ही नहीं तो भूकंप हुए और कभी नक्सलवाद, माओइस्ट नक्सलवाद से भी हमने सामना किया और आतंकवादियों के साथ भी बड़ा सामना किया। काफ़ी लोगों को जान गंवानी पड़ी। पर हमारा इतिहास इस बात को दर्शाता है कि हमने समस्याओं पर और संकटों पर मात किया है। तो पहली बात मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस संकट के समय में पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर हम कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई तो जीतेंगे ही, पर उसके साथ साथ आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे। इस आत्मविश्वास को जगाने का काम हम सबको करना होगा। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और 2 कविताएं और बड़ी प्रसिद्ध है जो आप सबको पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और तीसरी बात कविता जो थी, हम होंगे कामयाब। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास को निर्माण करके हम कामयाब होंगे, यशस्वी होंगे, कोविड-19 की लड़ाई जीतेंगे और इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे। इस आत्मविश्वास को हमें देश में निर्माण करना, ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है और आप सब लोग उस दिशा में जरूर प्रयास करोगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मिल रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19। हमें आज के परिस्थिति में कोविड-19 की समस्या को समझकर जीवन जीने की पद्धति को विकसित करना होगा और वो भी आप जैसे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास किया है। बाकी समाज बांधवों को भी हमें साथ ले जाना होगा। सबसे पहले ये कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना, यही हमारे विचारों का सबसे बड़ा बेस है। और ये राष्ट्र वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बने हैं। हम विस्तारवादी नहीं हैं। हमने हर समय विश्व का कल्याण हो, यही भाव हमारे संस्कृति में जगाया है। हमने ये नहीं कहा है कि केवल हमारा कल्याण हो। हमारा भाव यही रहा है, जो हमारी विचारधारा यही रही, भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, जो स्वामी विवेकानंद जी से लेकर हमें यही प्रेरणा दी है कि विश्व का कल्याण हो। पर इसके साथ साथ विश्व का कल्याण होना चाहिए तो उसके लिए हमें भी एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निर्माण होना चाहिए।
और हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। हमारी बेरोजगारी है इसलिए गरीबी है, और गरीबी है इसलिए भूखमरी है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। अगर इस देश में एप्रोप्रिएट विजन अगर होगी और देश के प्रति विकास की जो नीति है, जो उसका सही क्रियान्वयन होगा, तो ये देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकती है। अब जब यह उद्देश्य हमने तय किया है तो हमें हमारा मार्ग भी निश्चित करना होगा, और मार्ग निश्चित करते समय साइंटिफिकली, टेक्निकली और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दो बातें जरूरी होती है कि कोई उद्देश्य को अगर हासिल करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीकनेसेस। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, इसको हमको समझना होगा, और जो स्ट्रेंथ है उनको और मजबूत करना पड़ेगा, और वीकनेसेस का कन्वर्शन स्ट्रेंथ में करना होगा। और आज की वर्ल्ड की इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उसमें यंग, टैलेंटेड, स्किल्ड, इंजीनियर, मैन पावर हमारी स्ट्रेंथ है। पॉपुलेशन के कारण बहुत बड़ा मार्केट है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में काफ़ी विकास हुआ है। हमारे मेजर पोर्ट 12 है और 200 छोटे पोर्ट है। हमारी इफिशिएंसी दुगनी हुई है। हमारा बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। हमारे यहाँ पावर सरप्लस है। जहाँ तक हमारी टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसका भी विकास हो रहा है। यूनिवर्सिटी का भी उसमें काफ़ी अच्छा योगदान है। हमारे IITs का है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है। और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग लगातार एक अच्छे दिशा से आगे जा रहे हैं, पर एक बात जरूर है कि ये स्पीड हमको बढ़ानी होगी। आज हमारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है उसमें GDP, पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, तीनों बातों में हमें काफ़ी चिंता है, और इसलिए हम सब लोग मिलकर इन समस्याओं को मात करके हम इंडस्ट्री के द्वारा, खेती के द्वारा विकास कैसे करें, और उस विकास से रोजगार का निर्माण कैसे करें, रोजगार का निर्माण करके हम गरीबी कैसे दूर करें, और गरीबी से भूखमरी कैसे दूर करें, और एक सस्टेनेबल जीवन हम समाज के सभी लोगों को कैसे दें, यही हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण को देखते हुए हमें सभी स्टेक होल्डर्स को उस दिशा में प्रयास करने होंगे। केवल इक्कड़ दुक्कड़ लोगों ने करने से नहीं होगा, और इसलिए यूनिवर्सिटी, IITs, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब का फाउंडेशन जैसे आपके हैं, इस सब लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी ये नॉलेज का जनरेशन करने वाला एक पावर प्लांट है, और नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। दो मेरे प्रिय विषय है, एक है कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, और दूसरा विषय है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई वेस्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, प्रॉपर इनोवेशन होगा, प्रॉपर रिसर्च होगा, और अगर सही लीडरशिप होगी, तो यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। एक VC अगर एक यूनिवर्सिटी को अच्छे मिल जाते हैं तो टॉपर की संख्या बढ़ जाती है। एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च होकर पेटेंट मिलते हैं तो वहाँ के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। पर यह कंट्रीब्यूशन और बढ़ाकर हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स के ऊपर कैसे जाना है, ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। एक फील्ड जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें MSME आती है। हमारे देश में टोटल 22 से 24% GDP कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। 52 से 56% हमारा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, और करीब 12 से 16% एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज से आता है। और स्वाभाविक रूप में आज हमारे देश की आवश्यकता यह है कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल
और जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहां हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम जब तक हम नहीं बढ़ाते तब तक देश का रिकॉर्ड हम अच्छा नहीं कर सकते। और इसलिए जहां डेवलपमेंट हुए वहां और करनी भी है, पर उसके साथ गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से प्रसिद्ध है, वो यही है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को केंद्र बिंदु मानकर उसको सस्टेनेबल जीवन पद्धति कैसे मिलेगी, रोटी, कपड़ा, मकान कैसे मिलेगा, अच्छी स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छे बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल कैसे मिलेगा, इसके आधार पर उसको केंद्र बिंदु मानकर नीतियां बनाकर कल्याणकारी राज्य में ये उद्दिष्टों को पूरा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए हमें कौन से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, कौन से नीतियों को स्वीकारना पड़ेगा और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इन बातों के आधार पर ही हमारी शिक्षा संस्थाओं को, यूनिवर्सिटीज़ को, IITs को आगे जाना होगा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज निश्चित रूप से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, IITs है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इनमें सबसे बड़ी कमी ये है कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है, अब उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। थियोरेटिकली हम यूनिवर्सिटी में कितना भी सीखें, पर जैसे आपके यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, मशीन टूल की इंडस्ट्रीज है पंजाब में, होजियरी की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर की इंडस्ट्री है, अनेक प्रकार की MSMEs है, क्या उनके साथ अभी मैं MSME की ओर से टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर दे रहा हूँ, तो परसों ही मैंने कहा कि हम लोग ये नई जगह लो, बिल्डिंग बनाओ, इसके बजाय हम इंजीनियरिंग कॉलेज और IIT को कहेंगे कि जगह तुम्हारी होगी, बिल्डिंग तुम्हारी होगी, मशीन हमारी होंगी, और आप इसमें टेक्नोलॉजी सेंटर करके वहाँ के इंडस्ट्री को मदद करिए। कहीं स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्या हर्ज है कि हमारे जैसे NHIMM DPR बनाते हैं, तो हमारे DPR बनाने के लिए हमारे यहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उस ब्लैक स्पॉट्स को हमने काफ़ी 30-40 हज़ार करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मैंने बीच में कहा कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे IIT के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आगे आए और स्टडी करके ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर स्टडी करके हमको प्रपोजल दें, हम उनको पैसे दें, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। क्यों नहीं सरकार के और यूनिवर्सिटी के बीच में जो काम करने वाले लोग हैं, जो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे इंडस्ट्री हो, ये एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनमें आपस में तालमेल क्यों नहीं है, बातचीत क्यों नहीं है? We need to establish cooperation, coordination and communication between the stakeholders. अभी जैसे एक इंडस्ट्री है, वो मशीन टूल बना रही है और आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, तो क्यों नहीं उनके साथ बैठ के काम करें? और आप अगर MSME को हमको अगर प्रपोजल देते कि उसके रिसर्च, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके यूनिवर्सिटी में आप सेंटर खोलना चाहते हैं, तो हम पॉलिसी दे रहे क्या, ठीक है हम देते हैं, आप बिल्डिंग और लैंड दे दो, हम लोग बाकी पैसा देंगे, आप इतने लड़कों को सिखाओ, जरूर उनको रोजगार मिलेगा। तो मेरा आपको कहना यही है कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है, और प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बातों आवश्यक है, और दोनों बातों का अनुभव मिलकर जो नेतृत्व, जो लीडरशिप, जो काम करने लोग आगे आएंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए केवल अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। अब हम लोग जूझ रहे हैं कि हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट कम करना है, तो मैं छोटा सा इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ और लोगों की मदद ले रहा हूँ। तो मुझे अभी ध्यान में आया है, तो मेरे साथ कुछ अच्छे लोग, अभी एक मेरे साथ काम कर रहा है युवक है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2nd मेरिट आया है। एक दूसरा IIT इंजीनियर है, वो लातूर महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने मुझे डाटा दिया कि वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना में है। तो मैंने कहा कि ये वर्ल्ड का 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या क्या है, तो उसमें मोटे तौर पर 10 इंडस्ट्री आई। फिर कौन सी इंडस्ट्री कितना वहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, ये मैंने देखा। तब मैंने देखा कि फिर कौन से देश में जो चीज़ बन रही है वो हमारे देश में क्यों नहीं बन सकती।
बाद में हमारे देश का 3 साल का एक्सपोर्ट क्या है और इंपोर्ट क्या है। आप में यूनिवर्सिटी में इस पर स्टडी करना चाहिए, मैं भी अब किताब तैयार कर रहा हूं। जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है और जो इंपोर्ट है उसको कम करना है, और इंपोर्ट कम करने में हम देश का फायदा कर सकते हैं। अभी आप पंजाब यूनिवर्सिटी के हो तो पंजाब से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम आपको बताता हूं जो पंजाब के लिए बहुत अहम प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है और 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं होता है, चावल भी अच्छा होता है। अब क्या हुआ है कि हमारे पास गेहूं और चावल काफी बड़े प्रमाण पर उत्पादन हुआ है। चावल में तो ऐसा है कि अभी इतना स्टॉक है 3 साल का, तो हम लोग वर्ल्ड को जितना चावल लगता है उतना दे सकते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिगड़ गया। अब हमने एमएसपी बढ़ाई क्योंकि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। अब नेचुरली सरप्लस प्रोडक्शन अगर ये हुआ है तो इसमें क्रॉप पैटर्न बदलना होगा। अभी हमारे यहाँ एडिबल ऑयल 90,000 करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है। अगर पंजाब में अगर हम सरसों, भुईमूग, फली या सोयाबीन या सूर्यफूल या जिस प्रकार की खाद्य तेल बिया अगर लगाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमारे यहाँ कॉर्न बनता है तो कॉर्न से भी तेल होता है, पर आज पामोलिन ऑयल की जो कॉस्ट है उसके साथ हम मैच नहीं कर पाते। अब हमें यह है कि हमको एडिबल ऑयल सीड को बढ़ाना है तो क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। अब आपको दूसरी बात बताता हूं, हम 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का, और पंजाब हरियाणा ये हमारे ग्रोथ में बहुत बड़े बन सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। आज हमारे देश में हमने इथेनॉल की इकोनॉमी लाई। मैं 12 साल से इसके लिए बोलता रहा हूं, शुरुआत में बहुत मैंने इसके लिए संघर्ष भी किया। आज हमारे देश से शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। अभी शुगर सरप्लस हो गई। ब्राजील में शुगर का भाव 22 रुपए किलो और हमारे देश में 33-34 रुपए किलो आया मिनिमम, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो शुगर के बजाय हम अभी शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए 6,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। ये सब्सिडी देने के बजाय, शुगर बनाने के बजाय शुगर का कन्वर्शन अगर इथेनॉल में करते हैं तो हमारे देश की इकोनॉमी कितने बड़े फायदा होगा। और इसलिए अभी हमने शुगर के जूस से इथेनॉल, मोलाइसेस से इथेनॉल, इसकी अनुमति दी। बी हेवी मोलाइसेस 4% के बजाय 6% डालकर उससे इथेनॉल बनाएंगे। अब इतना ही नहीं तो अब फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली। अब 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल तैयार होता है, और उसके बाद में जो निकलता है, स्पेंट वॉश नहीं कहते, वो जो राइस से बनाकर उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके उसकी पाउडर बनाते हैं, तो वो हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री में जाती है, वो लेने के लिए तैयार है। 20 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए किलो उसका भाव है, तो वैल्यू एडिशन हो गया। और इथेनॉल के कारण आज हमारे देश में हम 15% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, तो वो भी आज पंजाब में कम से कम, पंजाब हरियाणा को पकड़ के 50 डिस्टिलरी तुरंत शुरू हो सकती है, और जिससे इथेनॉल बनेगा, पोल्यूशन कम करेगा और हमारे देश का इंपोर्ट बचाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भाव मिलेगा। तो हमें इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। अभी आपके यहाँ परली है, अभी पंजाब हरियाणा में जो परली जलाई जाती है उससे पोल्यूशन होता है, और दिल्ली के पोल्यूशन का एक बड़ा कारण यह है कि ये जो परली जो होती है, ये जलाने के कारण आज हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। थोड़ा यह आवाज बंद करिए, म्यूट कर लीजिए। तो पंजाब और हरियाणा में जो परली बनती है उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब यूनिवर्सिटी का काम है, टेक्नोलॉजी आई है कि 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी होता है, और डीजल की कार और ट्रक और बस अगर हम बायो सीएनजी पर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 50% सेविंग होता है और पोल्यूशन भी कम हो जाता है एकदम। तो पंजाब में ट्रैक्टर भी इसके ऊपर चल सकते हैं, एक किसान के 50,000 रुपए साल के बच सकते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी है, टेक्निकल प्रूवन टेक्नोलॉजी है, और परली को फुकट में मिल सकती है। अभी आप खरीद सकते तो किसानों को भाव मिल सकता है, और पूरे पंजाब में डीजल की जरूरत ही नहीं है। और ये सब काम मैं खुद करता हूं, तो मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं करके अधिकार से भी बता रहा हूं, और आपको दिखा भी सकता हूं। हमारे एक गोंधलेकर करके IIT के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है पूना में,
उन्होंने कॉटन स्ट्रॉ, विश स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास पर के ये बना के दिखाया। अभी इथेनॉल जो बनता है उससे बायोप्लास्टिक बनता है जो बायोडिग्रेडेबल है 78 आवर में, तो हमें पेट्रोलियम प्लास्टिक की जरूरत नहीं है। उसको बता जाने के लिए इतना इथेनॉल ही नहीं हमारे पास, यहां जगह है। और अब इथेनॉल में अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में फ्लेक्स इंजन है कि आपके यही BMW, टोयोटो, होंडा, मर्सिडीज, यही गाड़ियां सब ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है, वो फ्लेक्स इंजन है। और कंज्यूमर को चॉइस है कि वो एक तो 100% पेट्रोल डाले या 100% इथेनॉल डाले। अब पंजाब में बठिंडा में रिफाइनरी है, अच्छी बात है, पर पंजाब में किसानों ने ही पेट्रोल डीजल का पर्याय दिया और उन्हीं ने बायो CNG के और इथेनॉल के पंप लग गए। तो ये इंपोर्टेड फ्यूल 7 लाख करोड़ के लाकर किसानों को देने की आवश्यकता या हमें खर्चा करने की आवश्यकता क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस। तो मुझे जो कहना है कि परिस्थिति के अनुरूप राज्य की और वहां की रीजन की आवश्यकता के अनुसार हमें वहां क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है और क्या टेक्नोलॉजी देकर हम क्या वहां वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसका विचार यूनिवर्सिटी नहीं करेगी तो कौन करेगा? और यूनिवर्सिटी में एक साइड से तुम्हारा कितना भी तुम जीनियस हो और रिसर्च हो, पर वहां के स्थानिक लोगों को, स्थानिक इंडस्ट्री को अगर उसका उपयोग नहीं होता होगा, ये बात जरूर है कि इंटरनेशनल लेवल के भी रिसर्च करने चाहिए, नेशनल लेवल पे भी काम करना चाहिए, पर रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी समस्या होगी, उसको भी सुलझाना। नॉलेज पावर के रूप में जो जनरेशन प्लान यूनिवर्सिटी के रूप में डाला है, क्या उनके नॉलेज का उपयोग करके आजू बाजू के गांवों में, जिले में क्या उन गरीबों के जीवन को बदल सकते हैं? क्या वहां एंटरप्रेन्योरशिप आ कर ये नए उद्योग आ सकते हैं, रोजगार निर्माण हो सकता है? ऐसी इतनी बातें हैं कि मैं अब 2 घंटे बोलूंगा तो पंजाब की स्ट्रेंथ पे 50 बातें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने 2 उदाहरण आपको बताए कि आप पूरे पंजाब और हरियाणा के किसानों को आप बिल्कुल उनके जीवन को सुधार सकते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि आप अगर चावल नहीं लगाओगे, पैडी नहीं लगाओगे, तो हम पर एकड़ इतनी सब्सिडी आपको देंगे। अब ये स्थिति जो है, इसमें हम लोग नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा करेंगे, हम ये निश्चित रूप से वैल्यू एडिशन करेंगे। अब हमारी एक्सपोर्ट है, हमारी होजियरी एक्सपोर्ट होती है, क्या इसके लिए अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्या? हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को, अभी मैं आपको बताता हूं, मैं अभी दिल्ली से मुंबई हाईवे बना रहा हूं। अभी एक ट्रक दिल्ली से मुंबई जाता है तो उसको 58 आवर 56 आवर लगते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि 24 से 26 घंटे में ट्रक चला जाएगा। अब मुझे बताइए कि एक ट्रक महीने में 5 ट्रिप मार रहा होगा तो वो कम से कम 10 या 12 ट्रिप मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। अभी मैं दिल्ली से अमृतसर कटरा हाईवे बना रहा हूं, जींद से जाता है, मुझे पंजाब हरियाणा की ज्यादा जानकारी नहीं है, पर दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, और अमृतसर से कटरा है तो पूरा रोड बड़ा बन रहा है, तो इसमें एकदम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और ये रोड को मुंबई दिल्ली से जोड़ देंगे, दिल्ली आने की जरूरत नहीं, आपके वो जो GT रोड से भी आने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपका माल जाएगा। मुझे मालूम है अभी एक शायद जालंधर से हम लोग राजस्थान में अजमेर, वहां जोड़कर मुंबई को जोड़ रहे हैं, तो पूरा पंजाब का, हरियाणा का ट्रैफिक जो दिल्ली आता है इधर आने को शॉर्ट रूट हो जाएगा, आपके कंटेनर डायरेक्ट चले जाएंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, लेबर कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, पावर कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, तब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। अभी अमेरिका में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12 से 13% आती है, यूके में 12% है, यूरोपियन कंट्रीज में, और चाइना में 8% है, और हमारे देश में 18% है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम किए बिना हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते। हमारे पास हुनर है। अभी मैं अमेज़न के साथ, मेरा कार्यक्रम हुआ था 10-15 दिन पहले, उनने मुझे कहा कि हमने 60,000 करोड़ का MSME का माल एक्सपोर्ट किया है। तो मैंने कहा ये बात जरूर है, मुझे बताओ कि आपने भारत में इंपोर्ट कितना किया और एक्सपोर्ट कितना किया। फिर मैंने उनको बात दी कि भाई मैं आपको स्वीकार करूंगा कि अगर 2 साल के अंदर आप हमारे MSME का 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करके देंगे तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। अब मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से ये कर सकते हैं, और पंजाब तो, हरियाणा तो उद्यमशील है। देखिए, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पर रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉलेज है, ह्यूमन रिसोर्सेस के कॉलेजेस है, पर एंटरप्रेन्योरशिप के कॉलेज नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने में पंजाब और हरियाणा में तो बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका उपयोग करके देश में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला राज्य पंजाब बने, और उस निर्यात में वहां की यूनिवर्सिटी, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस उस प्रकार की स्किल्ड मैन पावर और टेक्नोलॉजिकली गाइडेंस इंडस्ट्री को उपलब्ध करा कर दे और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन करे, तो पंजाब के विकास का चक्र और गति से घूमेगा, 2 गुना 3 गुना ज्यादा गति से घूमेगा, तो गरीबी नहीं रहेगी। और आज हम लोग, मुझे मालूम है कि आज राइस ब्रांड का तेल है आपके यहाँ तैयार होता है, तो पंजाब से तेल निकलकर आज काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। अभी मैंने जैसे कहा कि मैं 3 साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा इकट्ठा कर रहा हूं, और मैं आपके यूनिवर्सिटीज को आह्वान करूंगा कि आप इसको स्टडी करिए कि 3 साल में इंपोर्ट क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या हुआ। ये इंपोर्ट क्या हम लोग रोक सकते हैं क्या? हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं क्या? मैं आप छोटी सी बात बताता हूं। ये कोविड-19 आया तो पीपी किट हमारे पास नहीं बनती थी। अभी ये 2-2.5 महीने पहले हमने एक स्पेशल हवाई जहाज से चाइना से पीपी किट लाई। ये बड़ा मन को दुख देने वाली बात थी। तो मैंने हमारे अधिकारियों को बोला कि इसको बदलना है, और हमने अनेक जगह पर पीपी किट बनाने में एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया। मेरे यहाँ नागपुर में एक हमारा एमएसएमई का ऑरेंज सिटी क्लस्टर है, टेक्सटाइल क्लस्टर, वो पीटर इंग्लैंड के लिए शर्ट बनाते हैं उस ब्रांड के। तो मैंने कहा भाई आप ये बनाओ, उन्होंने बनाया। अब आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में इतनी पीपी किट बनी है कि अब हम एक्सपोर्ट कर सकते बड़े प्रमाण पर और रोजगार दे सकते हैं। हमारे से लोग लेने के लिए तैयार है। आज के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि किसी एक देश के साथ लोग डील करना नहीं चाहते, हमसे डील करना चाहते हैं। हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो आज पीपी किट एक्सपोर्ट हो सकती है। सैनिटाइजर हम बेच सकते हैं। आज हमारे किसानों में चावल से सैनिटाइजर बनाने की बात हो सकती है। प्रधानमंत्री मुझे पूछ रहे थे कि इसमें क्यों नहीं होता, चावल से सैनिटाइजर क्यों नहीं बनते? बन सकते हैं। सैनिटाइजर यानी 80% अल्कोहल है। तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि नए नए इनोवेशन के साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को तैयार करना। क्या पंजाब की इंडस्ट्री जो पंजाब में डेवलप हुई है, लुधियाना में है, जालंधर में, बाकी जगह पर है, क्या वहां के उद्योगों को हमारे इंपोर्ट होने वाले मटेरियल पर उन्होंने इंडस्ट्री को बुलाकर रिसर्च करके उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके क्या हमारे देश के इंपोर्ट को कम करने में हमारी यूनिवर्सिटी क्या उनको गाइड कर सकती है? निश्चित कर सकती है। आज मुझे बताइए कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट कितना काम कर सकता है। और इसलिए हमें देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना है, और सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए हमारे पर कैपिटा इनकम जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है। रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में जाना है। अभी हमारे एमएसएमई में टोटल जीडीपी ग्रोथ में हमारा 30% कंट्रीब्यूशन है, वो हमको 50% करना है। देश का एक्सपोर्ट 48% है हमारा एमएसएमई से होता है, उसको हमको 60% करना है। और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट हुए, हमको 5 साल में 5 करोड़ जॉब क्रिएट करने हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के रेशो में हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने की क्षमता रखने वाले जो उद्योग है उनको सस्ता कैपिटल मिले एनबीएफसी बैंकों से, या अभी हमने उनको एक फंड ऑफ फंड तैयार किया है कि वो कैपिटल मार्केट में जाकर वो अपना, हम उनको 15 करोड़ तक इक्विटी देंगे, बाद में कैपिटल मार्केट में जाकर वो अपना बॉन्ड इश्यू निकालेंगे और पैसे खड़ा करेंगे। और मेरा अभी इंटरेक्शन कल कनाडा एंड इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हुआ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उसमें थे, कैनेडियन अपना ये ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर अमेरिका में वो फिलिप कैपिटल ने लिया, 17,000 लोग थे, मैंने उनको कहा एमएसएमई में इन्वेस्ट करो, वो तैयार है। फिर मैंने यूके के बिजनेसमैन के साथ बात की, वो भी तैयार है। तो हमें वहां जो इक्विटी मिलेगी वो सस्ती होगी, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है। हमारे एनबीएफसी के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है क्या? लिक्विडिटी हमारा प्रॉब्लम है।
इस समय संकट में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि लिक्विडिटी को बढ़ाएं। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी का चक्र गतिशील होगा, रोजगार निर्माण होंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट इकोनॉमी बढ़ेगी, तो हमारा उद्योग बिजनेस जो है वो चलेगा और तो ही हम लोग प्रगति करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, एमएसएमई में हमें अब प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब चाइना में क्या है, उन्होंने क्या है, वॉल्यूम, नंबर। अभी आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। एक डीजल की बस चलती है, उसका पर किलोमीटर कॉस्ट, बेस्ट मुंबई का जो है, जो मुंबई की बस है, उसकी कॉस्ट 115 रुपए पर किलोमीटर है। और एक बस अगर आप 100% बायो इथेनॉल पर हमने चलाई स्कैनिया के नागपुर में, तो उसकी कॉस्ट आई 78 रुपीज पर लीटर। और इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट है 50 रुपए पर किलोमीटर। अब मुझे बताइए कि एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस, उसकी कॉस्ट है 50 रुपए पर उसकी कैपिटल कॉस्ट है 2 करोड़। और जैसे नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट आएगी 80 लाख रुपए तक। अब डीजल के बस की कॉस्ट है 50 लाख रुपए, फिर भी उसका खर्चा है 115 रुपए किलोमीटर, क्योंकि डीजल का खर्चा ज्यादा है। अभी मैंने एक एसयूवी को लॉन्च किया था, तो मैंने बुक की और मेरे यहाँ लेके गया, तो मेरे लड़के ने मुझे बताया कि उसका खर्चा जो है 13 से 14 हजार रुपये पेट्रोल का लगता था, तो 700 से 800 रुपये केवल इसमें हमारे इलेक्ट्रिक में खर्चा आ रहा, तो 12,000 रुपये महीने की बचत हो गई। तो इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल सस्ता है। तो धीरे धीरे अभी आपकी पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां सीएनजी पे कन्वर्ट करो तो 50% सेविंग है। हमारे ट्रक जो डीजल पर है वो एलएनजी पर खर्चा करो, तो एक ट्रक को एलएनजी पर करने के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा है। और कल मैं एक उद्योगपति आए थे, तो मैंने कहा 2 साल में ये वसूल होता है, तो उन्होंने कहा 2 नहीं 9 महीने में। अगर ट्रक रोज 500-600 किलोमीटर चलेगा तो 1 साल में पैसा वसूल होता है, इतना सेविंग है। अब हम पेट्रोल डीजल के बजाय एलएनजी के पंप लाने की बात कर रहे हैं। मैं ही मंत्री हूं इस विभाग का। और पंजाब में अगर हम ये ट्रैक्टर को भी अगर सीएनजी पर कन्वर्ट करें और ट्रक और बसेस को एलएनजी पे कन्वर्ट करें, तो टिकट रेट 30% सस्ते हो जाएंगे, एयर कंडीशन बस में लोग घूमेंगे। अब रोड भी अच्छे बन रहे हैं, तो डबल डेकर बसेस इलेक्ट्रिक पर या एलएनजी पर चलेगी तो टोटल इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। ये सब प्रूवन है। अब ये नए टेक्निकल इनोवेशन, रिसर्च, इसका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, इसकी वायबिलिटी क्या है, इसका स्टडी तो यूनिवर्सिटी कर सकती है, प्रोफेसर कर सकते हैं, एकेडमिशियन कर सकते हैं। क्यों नहीं जो देश के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी है, जो समाज के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी है, उसका रिसर्च क्यों ना करें। हमारे यूनिवर्सिटी के कम से कम 150-200 किलोमीटर के स्पीयर में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट किस प्रकार का है, एमएसएमई किस प्रकार की है, एग्रीकल्चर में उनको क्या जरूरत है, हमारे यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में हम उसमें से एक टेक्निकल एडवाइस उनको दे सकते हैं क्या, उनके और हमारे बीच में उनकी समस्याओं का चर्चा, डिस्कशन हो सकता है क्या, संवाद हो सकता है क्या उनके प्रॉब्लम और समस्या के हम सोल्यूशन दे सकते हैं क्या, उनको अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग लगते हैं, सर्टिफिकेट लगते हैं क्या, हर जगह की यूनिवर्सिटी कुछ फी लेकर वो सर्टिफिकेट दे दे। और ये कोई कठिन नहीं है। एक हमारे यहाँ नागपुर में एलआईटी करके है, मुकुल जी जानते हैं, वहाँ एक गोगटे करके प्रोफेसर थे, रिटायर्ड हो गए, अच्छे थे। तो मैं शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ, किसानों में बहुत हालत खराब है, तो लॉस मेकिंग होता है। तो मैंने उनको कहा, गोगटे साहब, शुगर के ऊपर आप कुछ तो भी करो, कुछ वैल्यू एडिशन की बात बताओ। तो शुगर से हमने डिटर्जेंट बनाया। अब आपको ताज्जुब होगा कि हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गया, अब रशिया में फैक्ट्री डालना है, दुबई में डालना है। शुगर मॉलिक्यूल से हम लोग डिटर्जेंट बनाए, लिक्विड डिटर्जेंट बनाए, हैंड वॉश बनाए, हमारे लॉन्ड्री का डिटर्जेंट बनाए, और वो सस्ता है, पेट्रोलियम बेस से सस्ता है, इको फ्रेंडली है। तो ये रिसर्च करने वाले प्रोफेसर वही हमारे सरकारी कॉलेज के थे जिन्होंने करके दिया। तो ये जो नॉलेजेबल रिटायर्ड प्रोफेसर है, एग्जिस्टिंग प्रोफेसर है, एकेडमिक बड़े बड़े लोग हैं, क्यों नहीं इंडस्ट्री के साथ उनके सब्जेक्ट के अनुसार एक सब ग्रुप तैयार करके उनके बीच में, वीसी साहब से मेरा अनुरोध है कि लेट अस देयर शुड एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। और हमारे जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहां जाके दे, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में दे। और सरकार में अनेक जगह में आईआईटी को, इंजीनियरिंग को, आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि मैं पोर्ट और शिपिंग का मंत्री था। तो ये हल्दिया पोर्ट है कलकत्ता में,
इसको हम लोग हर साल ड्रेजिंग करते थे और 250 करोड़ खर्चा आता था। तो फिर मेरे साथ एक IIT का इंजीनियर था, वो कहता था कि भाई ये 250 करोड़ का बचाकर हम 60-70 करोड़ में काम कर सकते हैं, 200 करोड़ हमारे साल के बच सकते हैं। तो मैंने चेयरमैन को कहा, चेयरमैन ने कहा वो दूसरा रूट है, वो बता रहा था, उसने कहा ये संभव नहीं है। तो मैंने IIT चेन्नई को कहा कि इसका रिसर्च करके मुझे बताओ। IIT चेन्नई ने एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को साथ लेकर इसका अध्ययन किया और मुझे कहा कि ये संभव है। और आपको ताज्जुब होगा कि अब हमारा खर्चा 250 के बजाय 60 करोड़ होता है। तो 200 करोड़ हमारे साल के बचाए IIT चेन्नई ने। मैंने तुरंत निर्णय किया कि अपने डिपार्टमेंट की ओर से IIT चेन्नई को 50 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए, हमारी एक चेयर बनाई और मैंने उनको कहा कि ये जो इनलैंड वाटरवेज गंगा का बन रहा है और हमारा समुद्र में ड्रेजिंग से लेकर सब है, आप हमारे अधिकृत ऑफिशियल एडवाइजर हो। आज IIT में हमने पैसे दिए, वहां के लड़के काम कर रहे, दोनों के बीच में से कोऑर्डिनेशन हुआ, अच्छा काम हो गया। अब अनेक यूनिवर्सिटी के साथ, IITs के साथ, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ आप आगे आइए और थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी थोड़ा उसका एडवांटेज मिलेगा, आपके कॉलेज को भी होगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी सुधरेगी। अब मुझे बताइए, हायर एजुकेशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आप जितना कुछ सुझाव देते हो, मैं सरकार में हूं तो इतना पैसा लाने में मुश्किल है। ये आप बोलते हैं कि इतना परसेंटेज एजुकेशन में खर्च, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, पर पैसा लाए कहां से? तुम सब चीजों के नाटक कर सकते हो, पैसे के नहीं कर सकते। यू नीड टू फाइंड आउट ए इनोवेटिव मॉडल। अभी मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं, मैं पिछले मेरे 5 साल में 17 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं सरकारी बजट के पैसे का तो लेता हूं, पर मैं बाहर का पैसा खड़ा करता हूं। आपको ताज्जुब होगा, मैं पोर्ट और शिपिंग का मंत्री था, मेरा बजट था 800 करोड़ का, तो 5 साल में मेरा बजट हो गया 4000 करोड़ का। और मैंने एक 16 लाख करोड़ का एक सागरमाला करके कार्यक्रम लिया। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे ही 5 साल में मैंने 6.5 लाख करोड़ के काम पूरे कर दिए, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाकर। और 4000 करोड़ का मेरा बजट था और मैंने 6.5 लाख करोड़ के काम हो गए पोर्ट में, और 7000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब मैं NHAI में काम करता हूँ, 1 लाख रुपए का मेरा बजट है और 10 लाख करोड़ मैं खड़े करके, मेरा इनकम 28,000 करोड़ है साल का, और मैं 5000 में उसको 5 लाख करोड़ करूंगा, 1 लाख करोड़ करूंगा, तो मैं 15 लाख करोड़ के काम कर सकता हूं। तो मैं कर रहा हूं। मुझे कोई, मैं इतने लाखों करोड़ में बात करता हूं तो लोग पहले मुझे बोलते थे कि ये मंत्री है, पॉलिटिशियन है। तो मैंने बोला मेरी एक एक चीज कागज पे लिख लेना, और मैंने कहीं भी एक भी बात अगर नहीं होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई मुझे पूछ नहीं सकता। अब ये कटरा वाला रोड बना रहा हूं, मुझे मालूम नहीं 10,000 करोड़ लगते कि 15,000 करोड़ लगते। देखो आप 2 साल में रोड मिल जाएगा आपको। ये मुंबई पूना में 1 लाख करोड़ का रोड बना रहा हूं, तो मेरे पास 1 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं, और अभी आधा काम शुरू भी हो गया। मैं 3 साल के अंदर रोड पूरा करूंगा, 12 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा। पैसा कहां से आया? पैसा है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है। अप्रोप्रिएट विजन एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देर इज ए विल, देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो विल, देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस। चर्चा ही चर्चा करते विद्वान लोग, पर उसको उस प्रोपोर्शन में कुछ एग्जीक्यूशन तो होना चाहिए। जो आपने कहा, जो आपने रिसर्च किया, उसका प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर सक्सेस स्टोरी तो बननी चाहिए, तब वो कंप्लीट होगा। अगर रिसर्च कितना भी अच्छा हो, आपको अवार्ड मिले और वो यूनिवर्सिटी के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बंद होकर पड़े रहेगा, तो उपयोग क्या होगा? अल्टीमेटली वी नीड टू कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द रिसर्चर। ये दोनों के बीच में कैटलिस्ट के रूप में काम करने से ग्रोथ और बढ़ेगी। और मैं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। आज वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे दुनिया में रेप्यूटेड है। आज अमेरिका से लेकर सब जगह में उनका डंका पीट रहे हैं। अमेरिका में बेस्ट 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय है। आप मैं बता दो, कनाडा में और अमेरिका में जाओ, हाथ दिखाओ तो सरदार जी मिलता है, टैक्सी वो ही चलाते हैं। तो आज उन्होंने वहां से, यहां से, पंजाब से जाके बेचारे एक टैक्सी की, दूसरी टैक्सी की, एक मुझे मिला। मैंने बोला पहले आया, ऐसा मजबूरी में आया था, फिर एक की टैक्सी किराए से चलाता था,
फिर उसको चलाते चलाते मैंने पैसे कमाए, अपनी खुद की ली, अब फिर दूसरी ली, अब लड़की भी पढ़ती है, वो भी चलाती है। तो मैंने कहा बात देखो सरदार जी, कितना अच्छा काम आपने किया, ऊपर से डॉलर कमा के इधर पंजाब में भेजता है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होने के लिए अलग अलग प्रकार की विजन लोगों को देने में हम यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनका रोल इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, फिर कैटेगोरिकली इंडस्ट्री है, कोई मुझे पता नहीं पंजाब के, पर मशीनरी की बनानी कोई है, कोई होजियरी की होगी, कोई और कोई होगी। जैसे मैंने कहा इथेनॉल की बन सकती है, 50 इंडस्ट्री तुरंत आ सकती है और किसानों का फायदा हो सकता है। इकोनॉमिक वायबिलिटी है, डिमांड है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप इस बार यूनिवर्सिटी एंड नॉलेज उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। जो कमर्शियल कर रहे हैं उनको आप मदद करने जा रहे हैं और उससे ग्रोथ भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, रोजगार के साथ साथ देश की वेल्थ भी बढ़ेगी। और यही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है कि इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी को बढ़ाना, सुपर इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान को बनाना, सभी सेक्टर में हमको टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना। ये दो शब्दों में बहुत फर्क है, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये समय के साथ बदलना ही चाहिए और मुझे लगता है हर फील्ड में बहुत बड़ा ये है। और मेरा जो टारगेट है कि विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर, जो पंजाब हरियाणा के साथ मैं ज़्यादा आपको अपील करूंगा, वो हमारा अभी टर्नओवर 88,000 करोड़ का है और ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर मुझे 5 लाख करोड़ का 2 साल में करना है। गाँव में उद्योग खड़े हो, गांव के किसान के लड़कों को रोजगार मिले, गांव समृद्ध संपन्न बने, उस इंडस्ट्री के कारण गांव में अच्छी स्कूल, कॉलेज तैयार हो, हॉस्पिटल तैयार हो, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी जैसे तैयार होनी चाहिए वैसे स्मार्ट विलेज होना चाहिए। क्या यूनिवर्सिटी इसमें कैटलिस्ट बनकर इस सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है क्या? और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं तो आपके जैसा पीएचडी होल्डर भी नहीं हूँ और इंजीनियर भी नहीं हूँ। मेरे बारे में मिस इम्प्रेशन है कि मैं जब मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र में, तो आप कभी मुंबई जाओगे तो समुद्र में मैंने एक ब्रिज बनाया, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, और 55 फ्लाईओवर बनाए। और उस समय मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। ये मैं 96-97 की बात कर रहा हूँ। तो लोगों को लगा कि मुझे इंजीनियरिंग का बहुत समझता है, ये मेरे बारे में इंप्रेशन है। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं समझता, इंजीनियरिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं समझता, मैं गो गेटर हूँ। और इसलिए मैं हमारे लोगों को, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फाइनेंशियल ऑडिट तो होना ही चाहिए, पर उससे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। और इसलिए मैंने बताया लोगों को, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। Even I like people who are taking wrong decisions. If their intentions are good, no problem, forgive them. But I like people who can get the thing done, who can take the decision. But I dislike honest and talented people who don't want to take the decisions. Decision नहीं करना, ऐसे लोगों को मेरी पसंदी नहीं है। आप जो करना है करो, decision लो, take the decision and go ahead with full transparency. Time bound, result oriented, transparency and corruption free system committed to society and the nation. सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस को गतिशीलता, उद्योजकता को बढ़ाना, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना और कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना, इकोनॉमी को मजबूत करना, इसी से ही देश आगे जाने वाला है। और इसमें यूनिवर्सिटी का रोल बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुकुल जी ने बताया। वैसे पंजाब और हरियाणा में मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत उद्यमशीलता है, किसान पर एकड़ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, काफ़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, काफ़ी अच्छा काम करते हो, टूल्स में, मशीनरी में काफ़ी होशियार लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपने उनके इसमें चाय में अगर शक्कर यूनिवर्सिटी ने डाल दी तो सोने में सुहागन होगा। अगर आप उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, रिसर्च का सपोर्ट अगर यूनिवर्सिटी ने दिया तो उनकी कैपेसिटी दुगनी हो जाएगी। उनकी दुगनी होगी यानी पंजाब की दुगनी होगी, पंजाब के दुगनी हो गई यानी देश की दुगनी होगी, फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फिर रोजगार होगा, गरीबी दूर होगी। यही हमारा नेशनलिज्म का थिंकिंग है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग उस दिशा से काम भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एमएसएमई की ओर से मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आपके यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजी सेंटर देने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार हूँ।
आप वहाँ के स्थानिक लोगों से बात करिए, कौन सी आपके आजू बाजू में इंडस्ट्री है, उसका टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडस्ट्री और आप मिलकर प्रपोजल तैयार करिए। जमीन आपकी, बिल्डिंग आपकी, बाकी सब मेरा, और मैं आपको मदद करता हूं। और वहाँ के स्किल मैन पावर को तैयार करो और जरूर उसमें आप अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत बधाई आप सबको। कोविड-19 में आप लोग सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और उसके साथ साथ आप हम इस संकट पर मात करेंगे आत्मविश्वास के साथ। कोई डरने का कारण नहीं है, हमने अनेक संकट झेले, इसमें भी मात करके हम आगे जाएंगे। वैक्सीन भी जल्दी मिल जाएगा और हम निश्चित रूप से देश को आगे लेकर जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना भी पूरा करेंगे और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाकर दिखाएंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।